গোটা দেশেই মাছ মাংস অর্থাৎ আমিষ নিষিদ্ধ করা উচিত, এমনই দাবি করলেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। যদিও তিনি জানান এটা একান্তই তার ব্যক্তিগত মতামত। একই সঙ্গে ইউনিফর্ম সিভিল কোড দেশজুড়ে চালুর পক্ষেও সওয়াল করেছেন শত্রুঘ্ন সিনহা। যদিও এক্ষেত্রেও শত্রুঘ্ন সতর্ক সংযোজন, এই ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বেশ কিছু সূক্ষ্ম দিক রয়েছে, তাই কোনো তাড়াহুড়ো নয়, সব দলের সঙ্গে বসে এই ইউনিফর্ম চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সরকারকে। বিষয়টা যাতে কোনোভাবেই শুধুমাত্র ভোট ব্যাংকের হাতিয়ার হয়ে না দাঁড়ায়। বুধবার 5ই ফেব্রুয়ারি সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে এই মন্তব্য করেছেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। কিন্তু তিনি যেভাবে মাছ মাংস ব্যান হওয়া ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালুর পক্ষে সওয়াল করেছেন, তা নিয়ে রাজনীতির আঙিনায় জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিরোধী শিবিরে থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুরেই কেন সুর মেলালেন শত্রুঘ্ন, তা নিয়েই রাজধানীতে শুরু হয়েছে জল্পনা। উত্তরাখণ্ডে ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে এক দেশ এক আইন অর্থাৎ ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, দেখুন, একটা দেশে তো একটাই আইন থাকা উচিত, তাই এ নিয়ে তো কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু এই ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বেশ কিছু সূক্ষ্ম দিক রয়েছে, খুব সতর্কভাবে সেগুলো নাড়াচাড়া করতে হবে, অন্যথা মারাত্মক প্রভাব পড়বে। তাই এই আইন লাগু হবার আগে সরকারের সবকটি দলের সঙ্গে বসে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। শত্রুঘ্ন সিনহা আরও বলেন, তার মতে সারা দেশেই মাছ মাংস ব্যান করে দেওয়া উচিত, যদিও এটা তার ব্যক্তিগত মতামত। কিছুদিন আগে একজন সাংসদ বলেছেন, উত্তর পূর্ব ভারতে বিফ খেলে কিছু নয়, কিন্তু উত্তর ভারতে যদি এটা কেউ খায় তাহলে হৈ হৈ শুরু হয়ে যায়। এটা হওয়া উচিত নয়, কোনো নিয়ম বলে সেটা দেশের সর্বত্র এক হওয়া উচিত। এবার আপনাদের শোনাবো কি বলছেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা, শুনুন। देखो, उत्तराखंड में जो हुआ है, माने प्रथम दृष्टिया हम सब कहें तो सराहेंगे कि भाई ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए देश में, किसी देश में, और इस तमाम देशवासी ही मानेंगे इस बात को। लेकिन इसके अंदर बहुत फाइन प्रिंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे पेंच हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे वर्क का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन कह दोगे कि हम सिविल कोड, किससे लगे कि आप वोट के लिए कर रहे हो, वोट्स के लिए कर रहे हो या चुनाव के लिए कर रहे हो। क्या है इसमें? आपने एक कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और सही है, मुझे पूछो तो मुझे लगता बीफ क्या नॉन वेज ही बैन होना चाहिए, मेरी राय है सिर्फ। लेकिन आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और कई जगह आपने बीफ बैन नहीं किया है। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वहां पे आप खा सकते। किसी ने, अच्छे मेरे मित्र ने कहा था किसी और पार्टी के, वहां यमी, वहां खाओ तो यमी, और हमारे नॉर्थ इंडिया में खाओ तो मम्मी। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि यहाँ मम्मी हो गए वहां यमी हो। अगर बंद किया तो हर तरफ बंद कर दो। उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारे पेंच हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए फिर से सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, सबका राय मशवरा लेकर इसको इलेक्शन के दृष्टिकोण से या वोट्स के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इसको समझ बूझकर सावधानी के साथ करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर सावधानी के साथ करेंगे, राय मशवरा देकर करेंगे, सर्वदलीय बैठक के बाद करेंगे, तो नतीजा परिणाम जो है बहुत सार्थक होगा। যেদিন দিল্লিতে বিধানসভা ভোট, সেদিনই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাকুম্ভে তিনি প্রয়াগরাজে গিয়েছেন পুণ্যস্নান স্বার্থে। বিষয়টাকে চমক হিসেবেই দেখছেন শত্রুঘ্ন সিনহা। যদিও তিনি জানান মোদী তার পরম বন্ধু, কিন্তু কুম্ভে যেভাবে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল, তখন প্রধানমন্ত্রী কেন গেলেন না? দিল্লির ভোটের দিনই কেন তাকে যেতে হলো কুম্ভে? সেটা নিয়েও কথা বলেছেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। কি বলেছেন সেটা নিয়ে, সেটা শোনাবো এবার। जहां तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सवाल है, वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। अगर आप केजरीवाल जो है, अगर आपको दिखता है कि वो मास्टर कार्ड है, मास्टर ब्लास्टर है केजरीवाल, तो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे मित्र नरेंद्र मोदी वो मास्टर ब्रेन हैं और इस तरह से हरकत करते हैं। पहले भी किया है उन्होंने, और अब कल भी चुनाव की घड़ी में कि पहले क्यों नहीं गए। दुनिया जा रही थी, हालांकि माना को कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया तो मुझे लगा माननीय प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, तो शायद उसी हादसे की वजह से नहीं जा रहे होंगे। क्या जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे, उनके परिवार से? क्या जाएंगे तो अपनी तरफ से उनको सहायता राशि की घोषणा करेंगे? और जो किया गया है, क्या बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उन बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं क्या उनका पता लगाने की कोशिश करेंगे या करवाएंगे? ये अगर होता तो शायद ज्यादा सराहनीय होता। अब वो कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है, आस्था की बात है, भक्ति की बात है। मेरी पत्नी खुद जा रही हैं कुंभ में स्नान करने 2-1 दिन में ही,
और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं कल 5 तारीख को, तो आप मत जाओ, उसके एक आध दिन बाद जाओ। हमने सुझाव दिया, लेकिन प्रधानमंत्री करके और फिर पूरे दुनिया के मीडिया के सामने इस बात का प्रचार प्रसार करना और उस दिन करना जिस दिन वोटिंग हो रही हो, इसके मायने बहुत बदल जाते हैं। ये मैं कहूँगा इस दृष्टिकोण से, वोटिंग के दृष्टिकोण में पहले भी किया, गुफा में जाके बैठ गए जहाँ मीडिया को लेकर, सारे कैमरा को लेकर, आप तमाम लोगों को लेकर, और वहाँ पे योग मुद्रा में बैठ के साधना तपस्या में तल्लीन दिखाई पड़े। यह दुनिया को संदेश देने की कोशिश की हम ही हम हैं, लेकिन याद रखो तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ये ऐसा पब्लिक सब समझ रही है, देश की पब्लिक सब जानती है। मैं नहीं समझता हूँ, मेरे दृष्टिकोण से, मैं उनको बहुत मानता हूँ दोस्त के नाते, माननीय प्रधानमंत्री को, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से, मेरी नज़रों में खासकर चुनाव के दिन ऐसा करना मैं सराहनीय नहीं समझता हूँ। विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरुमा हिगुंसि पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदा यच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वं जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समी। প্রসঙ্গত বলি, উত্তরাখণ্ডে প্রথম ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু হয়েছে 27 জানুয়ারি 2025 চালু হয়েছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি। এই ইউসিসিকে বলা হয়েছে সমস্ত বিয়ের পাশাপাশি লিভ ইন সম্পর্কের জন্য রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। এর মূল বিধানগুলির মধ্যে রয়েছে পুত্র এবং কন্যাদের সমান সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের সমান ভিত্তি এবং লিভ ইন সম্পর্কের থেকে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্য বৈধতা। পুষ্কর ধামী নেতৃত্বাধীন উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার বিয়ে, ডিভোর্স এবং উত্তরাধিকারের রেজিস্ট্রেশন সহজ করার জন্য একটা অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে। আর এই সিভিল পোর্টাল নিয়ে বা এই ইউসিসি নিয়ে কি বলছেন শত্রুঘ্ন সিনহা, তিনি এই বিষয় নিয়ে মুখ খুলেছেন। কি বলছেন ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে শুনবো। देखो, उत्तराखंड में जो हुआ है, माने प्रथम दृष्टिया हम सब कहें तो सराहेंगे कि भाई ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए देश में, किसी देश में, और इस तमाम देशवासी ही मानेंगे इस बात को। लेकिन इसके अंदर बहुत फाइन प्रिंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे पेच हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे वर्क का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन कह दोगे। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা, ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।